السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فہم رمضان پروگرام کے سلسلے میں یہاں پر موجود ہیں۔ فہم رمضان پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اب ہم اصلاحی قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم اس کی تختی نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس میں کھڑی زبر کا وقف بتایا گیا ہے۔ حمزہ پر جب جزم آ جائے تو اسے کیسے پڑھیں گے، دو زبر کو الف سے تبدیل کرنا پڑ جائے تو کیسے پڑھا جائے گا، اور گول تا پہ اگر وقف کرنا ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں آج ہم سیکھیں گے۔ جیسا کہ تختی نمبر 9 میں بتایا گیا تھا، یہ چھوٹی سی جو دال ہوتی ہے اس کو دال کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے، اور ایسے یہ دال جزم ہے، اس کو دونوں صورتوں میں لکھا جاتا ہے، دال کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ جس حرف پہ جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہوتا ہے، اس کو پچھلے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ جیسے نون سے پیچھے حمزہ ہے، الف جب خالی ہوتا ہے تو ہم اس کو الف پڑھتے ہیں، اور الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے زبر زیر پیش تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ الف کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ ملانے کے لیے پہلے دونوں حرف پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔
اب ہم اس کو ملانا ہے نون کے ساتھ. ہم پڑھیں گے پہلے حمزہ پھر نون پھر حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اس کو پڑھیں گے. حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت. ہم نے پڑھا تھا کہ سمپل زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا, ان کو سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, نہ تو ان کو جھٹکا لگایا جاتا ہے نہ ان کو لمبا کیا جاتا ہے. انتا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی یا اس کے آگے الف ہوتا تو پھر ہم اس کو انتا پڑھتے. ہم اس کو پڑھیں گے انت. حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی اہدی. با عین زبر با دال پیش دو بعدو. با قا زبر بط. دونوں حرف پڑھیں پہلے پھر اس کی حرکت پڑھیں. با قا زبر بط شین زبر شا بقشا. سین عین زبر سا یا زبر یا سعیا. کسی بھی حرف کو کسی بھی زبر والے کو پیش والے کو ہم لمبا نہیں کریں گے. کاف نون پیش کن تا پیش تو کنتو. لام سین زبر لس تا زبر تا لستا. حمزہ میم زبر ام را دو زیر رن امرن. با را زبر با دال دو زبر دن باغدن. اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اس لفظ پہ وقف کرنا ہو تو کیسے کریں گے. جب دو زبر آ جائیں اور اس کے آگے الف ہو تو ایک زبر اس کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہم اس کو باغدن پڑھیں گے. اگر اس پہ وقف کرنا پڑ گیا تو پڑھیں گے باغدا. دال دو زبر دن یہ بغیر وقف کے ہے. اگر ہم نے آگے کسی اور آیت میں کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے وقف کرنا پڑ گیا تو ہم اس کی ایک زبر ختم کر دیں گے اور دال الف زبر دا پڑھیں گے. دن نہیں پڑھا جائے گا. پھر با را زبر باغ دال دو زبر دن باغدن. وقف کی صورت میں باغدا. جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جمعن. نون ساکن اور نون تنوین پہ غنہ ہوتا ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو, جیسے یہاں پہ دو زبر ہے دو زیر ہے دو پیش ہے, ان کو تنوین کہتے ہیں. اور نون ساکن یہ ہے. ساکن جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین پہ غنہ ہوتا ہے, لیکن اگر نون تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان پہ غنہ نہیں ہوتا. ادروائز ان پہ غنہ ہی ہوتا ہے. حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ 6 حروف ہلکی ہیں. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا. نون تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے غنہ نہیں ہوگا. ادروائز اس پہ بھی اور اس پہ بھی غنہ ہوگا. دو زبر دو زیر دو پیش تنوین ہے, تنوین پہ غنہ ہوتا ہے. ہا با زبر حب لام دو پیش لون حبلون. اب ہم نے حبلون پڑھا غنہ ہو گیا. اگر اس کے بعد آیت میں پڑھتے ہوئے کہیں اگر حروف ہلکی والا حرف ہوگا تو اس کو ہم حبلون پڑھیں گے, حبلون نہیں پڑھیں گے. خا سین پیش خس را دو زیرن خسرن. خا لام زبر خل قاف دو زبر قن خلقن. وقف کی صورت میں خلقا ٹھہرنا ہے, آپ نے سانس لینا ہے, وقف کرنا چاہتے ہیں پھر خلقا پڑھا جائے گا. اور اگر قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں آیت میں یہ لفظ آ گیا تو یہاں پہ خلقا پڑھ کے سانس لیں گے, دوبارہ پھر اس لفظ کو خلقن پڑھ کے آگے آپ اپنی آیت کو کمپلیٹ کریں گے. سین با زبر سب ہا دو زبر حن سبحن. وقف کی صورت میں سبحا. سین با زبر سب قاف دو زبر قن سبقن. وقف کی صورت میں سبقا. شین حمزہ زبر شا. دیکھیں اب الف ہے اس کے اوپر جزم ہے تو جزم جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے, اس کو
حمزہ پڑھیں گے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے، جس حمزہ کے اوپر جس الف کے اوپر یہ جزم ہوگی اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. شانن نہیں یہاں پہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، ہم نے اس کو جھٹکا لگانا ہے. شانن کیسے پڑھیں گے اس کو؟ شین حمزہ زبر شا، نون دو پیش نون، شانن. شانن لفظ غلط ہوگا، جھٹکا لگانا ہے کیونکہ الف کے اوپر جزم ہے. صاد با پیش صبح، ہا دو زبر حن، صبحن. وقف کے لیے صبح، ضاد با زبر ضب، ہا دو زبر حن، ضبحن. وقف کی صورت میں ضبحا. عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عبدن. وقف کی صورت میں عبدا. عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدن. تختی نمبر 9 میں آپ کو حروف قلقلہ کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا. یہ 5 حروف ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال. جب یہ ساکن ہو تو ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، ان پہ قلقلہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ صبحن، ضبحن، با آ رہا ہے ساکن، عبدن یہاں پہ دال آ رہی ہے، عدن. تو یہ سارے لفظ ہلا کر پڑھے جائیں گے، ان پہ قلقلہ کیا جائے گا. عین شین زبر عش، را دو زیر عشرین. عین صاد زبر عص، فا دو زیر فن، عصفن. غین را زبر غر، قاف دو زبر قن، غرقن. غین لام پیش غل، با دو زبر بن، غلبن. وقف کی صورت میں غلبا. فا صا زبر فس، لام دو پیش لن، فصلن. قاف دال زبر قد، ہا دو زبر حن، قدحن. اب دیکھیں نون تنوین کے بعد ساتھ الف بھی ہے لیکن تنوین کا الف نہیں پڑھا جاتا. جب ہم نے وقف کرنا ہے تب ایک زبر کے ساتھ اس کو الف کو پڑھنا ہے، ورنہ ہم نے ہا دو زبر حن پڑھنا ہے، قدحن. قاف ضا زبر قز، با دو زبر بن، قزبن. وقف کے لیے قزبا. کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کأسن. وقف کے ساتھ کأسا. کاف دال زبر قد، ہا دو زبر حن، قدحن. یہ باریک کاف ہے اور نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے، یہ والا قاف وہ موٹا قاف ہے، اس کو منہ گول کر کے حلق سے پڑھیں گے قاف، اور یہ باریک کاف ہے. قدحن اس کو موٹا نہیں کریں گے. لام غین زبر لغ، واو دو زبر ون، لغون. میم سین زیر مس، کاف دو پیش کن، مسکن. نون خا زبر نخ، لام دو زبر لن، نخلن. وقف کے ساتھ نخلا. نون شین زبر نش، قا دو زبر قن، نشطن. وقف کے ساتھ نشطا. نون فا زبر نف، سین دو زیر سن، نفسن. نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعن. قاف موٹا ہے، نقطوں والا قاف ہے اور ساکن ہے، اس لیے اس کے اوپر قلقلہ کریں گے اور ہلا کے پڑھیں گے. نقعن. یا سین پیش یس، را دو زبر ون، یسرن. وقف کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے یسرا. حمزہ با زبر اب، قاف کھڑی زبر قا، اب قا. کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے. تا را زبر تغ، ضاد کھڑی زبر ضا، ترضا. کھڑی زبر کا وقف اسی طرح ہوتا ہے، اگر ہم نے وقف کرنا ہے پھر بھی اب قا ہی پڑھا جائے گا، اگر ہم نے وقف نہیں کرنا پھر بھی یہ کھڑی زبر والے حروف ایسے ہی پڑھے جائیں گے. ترضا. تا نون زبر تن، سین کھڑی زبر سا، تنسا. یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد اگر سین کی جگہ کوئی حروف ہلکی ہوتا تو غنہ نہیں ہونا تھا. اب یہ حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے نہیں ہے تو اس پہ ہم غنہ کریں گے تنسا. یا قا زبر یخ، شین کھڑی زبر شا، یخشا. یا سین زبر یس، عین کھڑی زبر عا، یسعا. یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو. یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، یدعو.
زبر تج، را یا زیری تجری، را کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کو موٹا پڑے گی، اگر نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی. تا نون زبر تن، سین کھڑی زبر سا تن سا، یا خا زبر یخ، شین کھڑی زبر شا یخ شا، یا سین زبر یس، عین کھڑی زبر آ یس آ، یا تا زبر یت، لام واو پیش لو یت لو، یا دال زبر ید، عین واو پیش عو یدعو، تا جیم زبر تج، را یا زیر دی تجری، یا ہا زبر یک، دال یا زیر دی، یہ حروف مدہ کا یا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. الف واو یا یہ تین حروف مدہ ہیں، ان کو لمبا کیا جاتا ہے. یا ہا زبر یک، دال یا زیر دی یہدی، یا غین پیش یو، نون یا زیر نی یغنی، حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قد القد، حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر گل ام گل، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر وق. دیکھیں الف کے اوپر جزم آ گئی، ادھر پھر ہم نے جھٹکا لگانا ہے. اقرأ، فا غا زبر فر، غین با زبر غب، با کے اوپر جزم ہے، حروف کلکلا کے 5 حروف میں سے با ہے تو اس کو کھلا کے پڑھیں گے، کلکلا کریں گے اس کے اوپر. فرغب، فا نون زبر فن، صاد با زبر صب فن صب، واو نون زبر ون، ہا غا زبر حر ون حر. دیکھیں اب نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے نہیں، ٹھیک ہے. ون حر، حمزہ خا زبر اخ، را زبر غ اخرق، جیم زبر جا اخرج، حمزہ غا زبر او، سین زبر سا، لام زبر لا اغسل، حمزہ غین زبر اغ، قا زبر قا، شین زبر شا اغقش، حمزہ فا زبر اف، لام زبر لا افلح، حا زبر حا افلح، حمزہ کاف زبر اک، غا زبر غا اکغ، میم زبر ما اکوم، حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا الہ، میم زبر ما الہم، حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا انش، غا زبر غ انشر، نون ساکن ہے، حروف ہلکی کا کوئی حرف آگے نہیں ہے تو ہم اس پہ غنہ کر رہے ہیں. حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا انق، ضاد زبر ضا انقض، دال میم زبر دم، دال زبر دا دم دا، میم زبر ما دم دما، عین سین زبر عس، عین زبر ع عس ع، سین زبر سا عس عسا، حمزہ عین زبر اع، با پیش بو اعبو، دال پیش دو اعبدو، نون عین زبر نع، با پیش بو نعبو، دال پیش دو نعبدو، یا خا زبر یخ، را پیش رو یخرو، جیم پیش جو یخرجو، یا حا زبر یخ، سین زبر سا یحسا، با پیش بو یحسبو، یا شین زبر یش، غا زبر غ یشرا، با پیش بو یشربو، یا شین زبر یش، ہا زبر ہا یشہا، دال پیش دو یشہدو، تا غا زبر تاؤ، ہا زبر ہا تاغہا، قاف پیش کو تاغہقو، تا عین زبر تا، غا زیر ری تعری، فا پیش کو تعرفو، حمزہ قاف پیش اق، سین زیر سی اقسی، میم پیش مو اقسمو، یا با پیش یوب، دال زیر دی یوبدی، حمزہ پیش او یوبدیو، یا نون پیش یون، فا زبر فا یونفا، خا پیش خو یونفاخو، یا نون زبر ین،
قاف زبر قا ینق لام زیر لی ینقلی با پیش بو ینقلب یا پیش یو واو سین زبر وس یوس واو زیر بی یوسوی سین پیسو یوسوسو سا زبر سا قاف پیش کو ساقو لام تا زبر لت ساقولت حا پیش حو شین زیر شی حوشی را تا زبر غت حوشی غت سین پیسو قا زیر تی صوتی حا تا زبر حت صوتی حت کاف پیش کو شین زیر شی خوشی قا تا زبر قط خوشی قط نون پیش نو شین زیر شی نوشی غا تا زبر غت نوشی غت نون پیش نو صا زیر سی نسخی با تا زبر بت نسخی بت حمزہ زبر ا سا را زبر سر اثر نون زبر نا اثرنا واو زبر و سین قا زبر سق وسق نون زبر نا وسقنا فا زبر فا را غین زبر رغ فرغ تا زبر تا فرغتا تختی نمبر 10 کو ہم یہاں تک پڑھیں گے. اب ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو جزم والے حروف کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح جزم والے حروف کو ملایا جاتا ہے, کس طرح دو زبر والے حروف پہ وقف کیا جاتا ہے اس کو الف کی شکل دے کر. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارا آج کا ٹاپک ہے صدقہ اور فطرانہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ رد البلاء. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا, جو ہم نے تمہیں مال دیا اسے خرچ کرو. من قبل, اس سے پہلے, ان یأتی احدکم الموت, کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے. موت کے آنے سے پہلے جو ہم نے آپ کو رزق عطا کیا, مال عطا کیا, اسے خرچ کرو. فیقول رب لولا اخرتنی, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو رب لولا اخرتنی, اے اللہ ہمیں کیوں نہ مہلت دی گئی, الی اجل قریب, ایک وقت کی, کچھ دیر کی ہمیں مہلت کیوں نہ دی گئی. فاصدق, میں صدقہ کر لیتا, واکن من الصالحین, اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو, اپنی زندگی میں ہی صدقہ خیرات کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی ایسے ہی گزر جائے اور آپ کو موت آ جائے اور پھر آپ کو کہو کہ اللہ آپ نے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی. اے اللہ مجھے مہلت دیتے تو میں صدقہ خیرات کرتا, تیری راہ میں اپنا مال لگاتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے الصدقۃ رد البلاء, صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو رد کرتا ہے, یہ مصیبتوں کو ٹلا دیتا ہے, آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹال دیتا ہے. یہ صدقہ ہی ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹال دیتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے. صدقہ کرنے والا انسان بری موت سے بچ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرات کرنے میں جلدی کیا کرو, کیونکہ بلا اس سے آگے نہیں بڑھتی. جلدی کیا کرو, سوچا نہ کرو کہ میں یہ کر دوں گا, فوراً سے بیشتر صدقہ کر دیا کریں
अगर हमने सदका किया होता है तो वो मुसीबत हमारी तरफ नहीं बढ़ती, हम मुसीबतों से बच जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका करो चाहे वो एक खजूर के बराबर ही क्यों ना हो। अब खजूर कितनी की होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की अहमियत बताते हुए कि इतनी छोटी सी चीज़ का सदका भी आपके बहुत काम आएगा। जब आप इसका अजर देखेंगे तो इस वक्त कहेंगे कि मुझे मोहलत क्यों नहीं मिली थी, या अल्लाह मुझे मोहलत देता दुनिया में तो मैं भी सदका करता और आज मैं भी नेक लोगों में से हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो आप लोग सदका देते हैं ये अल्लाह के दाएं हाथ में जाता है। जो दुनिया में हम सदका देते हैं, छोटे से छोटा सदका भी, छोटी से छोटी चीज़ भी, अगर वो एक खजूर ही क्यों ना हो, तो ये सारा सदका जो है ये अल्लाह ताला के दाएं हाथ में जाता है। क़यामत के दिन खजूर के बराबर किया गया सदका पहाड़ बनकर चलता हुआ उस शख्स की तरफ आएगा जिसने सदका किया था। अगरचे एक खजूर के बराबर ही उसने सदका किया, तो क़यामत के दिन वो एक पहाड़ अपनी तरफ आता हुआ देखेगा, हैरान होगा और कहेगा कि या अल्लाह मैंने तो क्या कोई ऐसी नेकी की ही नहीं थी जो पहाड़ की सूरत में मेरी तरफ आ रही है। तो उसे बताया जाएगा कि तुम्हारा ये वो खजूर के बराबर किया गया सदका है जो आज तुझे पहाड़ की सूरत में दिया जा रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह कब्र में मुर्दे को सूरतुल मुल्क जो इंसान सूरतुल मुल्क रोज़ रात को सोने से पहले पढ़ता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उसको मुर्दे को सूरतुल मुल्क अपने परों में ऐसे छुपा लेगी जैसे मुर्गी कोई खतरा देकर अपने चूज़ों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है। सूरतुल मुल्क पढ़ने वाला शख्स ऐसे महफूज हो जाएगा, सूरत मुल्क उसको अपने परों में छुपा लेगी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जैसे सूरत मुल्क अपने पढ़ने वाले को इस तरह छुपाएगी, सदका भी इसी तरह उसकी मदद करेगा। जब उसको तरफ कोई अजाब आएगा, सांप बिच्छू आएंगे, तो सदका आगे खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं इसका दुनिया में खर्च किया गया माल हूँ, मैं इसको अजाब नहीं होने दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये बात समझाई थी कि जो शख्स सदका करता है अल्लाह ताला इसको हर किस्म की बीमारी से भी महफूज फरमाते हैं। सदका मुसीबतों को टलाता है, आजमाइशों को टलाता है और इसके साथ ही सदका बीमारियों का इलाज भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है दाऊ मगज़ुन बिस सदक़ती, अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से किया करो। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बग़ैर बीमारियों और आजमाइशों के ऊंचा दर्जा दे दे। अल्लाह ताला हमें किसी बीमारी में भी मुब्तला ना करे दुनिया में, और अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में भी मुब्तला ना करे। दुआ करते रहा करें कि अल्लाह हमें इन चीज़ों के बगैर ही ऊंचा दर्जा दे देना। अल्लाह के ख़जाने में कौन सा कमी है? अल्लाह ताला तो हर काम कर सकते हैं, अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों में मुब्तला ना करे। लेकिन अगर कोई बीमारी आ जाए तो फिर दुआई के साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए और सदका भी करना चाहिए। इब्ने कय्यम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं कि वो सारी ज़िंदगी आफियत में ही रहते हैं। जब उनकी ज़िंदगी होती है उनको कोई गम परेशानी बीमारी नहीं आती। जब वो कब्र में जाएंगे फिर भी आफियत में होंगे, जब वो हशर में उठेंगे तो फिर भी वो आफियत में होंगे। ऐसे लोग भी अल्लाह ताला ने दुनिया में भी पैदा किए हैं कि जो आफियत में ही रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए कि हम भी अल्लाह ताला की रहमो करम से आफियत में ही रहें, हम भी बीमारियों से बचें, आजमाइशों से बचें। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई बीमारी आ जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से मदद भी मांगनी चाहिए, उसका इलाज मुआवजा भी करवाना चाहिए, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इलाज करवाएं ऐसी चीज़ से जिसमें कोई हराम चीज़ शामिल ना की गई हो। ऐसी दवाई इस्तेमाल करें जिसमें किसी हराम चीज़ को शामिल ना किया गया हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ में शिफा रखी ही नहीं है जिसमें कोई हराम चीज़ शामिल की गई हो। इलाज के लिए ऐसी दवाई इस्तेमाल करें जिसमें हलाल चीज़ें ही हों, और इसके साथ साथ सदका भी करें। इलाज भी करवाएं और सदका भी करें तो अल्लाह ताला बीमारियों को टला देते हैं। इब्ने हाकम जो मुस्तदरक के लिखने वाले हैं, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो चुके थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज मुआवजा करवाया लेकिन उनके ज़ख्म ठीक नहीं हो रहे थे। हदीस पढ़ते हुए एक दिन नज़रों से ये हदीस गुजरी कि अपने मरीज़ों का इलाज सदके के साथ करो। फ़ौरन उठे तो मस्जिद में जाके उन्होंने पानी का इंतज़ाम फरमाया कि लोगों के पीने के लिए ठंडा पानी हो जो वहाँ उस वक्त की ज़रूरत होगी, उस लिहाज से उन्होंने पानी का वहाँ पे इंतज़ाम कर दिया। तो उनके चेहरे से सारे ज़ख्म ख़त्म हो गए और पूरी ज़िंदगी उनके चेहरे पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उनकी हर बीमारी को ख़त्म कर दिया।
एक अरबी आलम बयान करते हैं कि मेरे बेटे को कैंसर का मर्ज़ था। मैं इलाज करवा के थक चुका था। हर जगह मैंने हर तबीब, हर डॉक्टर के पास इलाज करवाया, लेकिन उसको कोई अफाका नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैं रात को लेटा हुआ था बहुत परेशानी के आलम में, तो मेरे जहन में ना एकदम से ये हदीस आई कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े के साथ करो। मैं फ़ौरन उठा, मैंने अपनी जेब में सदक़े की रकम डाली और मैं बाहर निकला किसी को सदका देने के लिए, तो मुझे कोई भी सदका देने के लिए मिला नहीं। मैं वापस आया तो मुझे ना एक बिल्ली नज़र आई जो कि बहुत कमज़ोर और लागिर सी थी। मैंने उस बिल्ली को दूध पिलाया। बिल्ली ने पेट भरकर दूध पिया और चली गई। मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि एक कौवा मेरे बीमार बेटे के सर पे चूंचे मार रहा है और वो बिल्ली आई और उस कौवे को खा गई। मैं जब सुबह को उठा, सुबह को मैंने फिर अपने बेटे को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना था, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह करवानी थी। मैं अपने बेटे को लेकर गया, उसकी रिपोर्ट्स करवाई तो उसकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। बिल्ली को दूध पिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी हर बीमारी ख़त्म कर दी। जो उसका इलाज करवा के थक चुका था, कहीं से कोई अफाका नहीं हो रहा था, परेशान हाल था। ये इस हदीस सदका करते वक्त, बीमारी के लिए सदका करते वक्त यकीन होना शर्त है। अगर आपका यकीन है ना कि मेरे नबी की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले हुए हैं, मेरे नबी ने फरमाया है कि मरीज़ों का इलाज सदक़े के साथ करो, आपको यकीन होना चाहिए कि मेरे नबी ने फरमाया है मैंने सदका करना है तो ये मर्ज़ ख़त्म हो जानी है। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा उतना ही आपका काम आसान होगा। अल्लाह ताला आपने जो सोचा होगा इंशाल्लाह वो ही करेंगे। उस आलिम को यकीन था कि मेरे नबी ने ये फरमाया है, ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला के इरशाद है वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो भी अल्फाज निकलते हैं वो उनकी अपनी मर्जी के नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं उनकी ज़ुबान से अल्फाज निकालते हैं। तो ये मेरे नबी की ज़ुबान के अल्फाज हैं कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े के साथ करो, अल्लाह ताला शिफा देते हैं। तो उसने सदका किया तो उसके बेटे की अल्लाह ताला ने जड़ से बीमारी ख़त्म कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है इसका माल कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताते हुए कसम उठाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, आपकी सदाकत में किसी को कोई शक नहीं है। आपके जो दुश्मन थे वो भी आपकी सच्चाई की गवाही दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी फरमा देते कि अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में खर्च करने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। तो हमें यकीन था, लेकिन अल्लाह के नबी ने कसम उठा के बताया है कि सलासु उक़सिमु अलैहिन, 3 चीज़ें ऐसी हैं, मैं लोगों में 3 चीज़ों पर कसम उठाता हूँ। उनमें से मैं कसम उठाता हूँ, पहली चीज़ मैं कसम उठाता हूँ जो शख्स सदका करता है अल्लाह की कसम उसका माल कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की अहमियत बताते हुए इस पे ज़ोर देकर कि इसके यकीन हो जाए, आप वैसे भी बताते तो हमें यकीन ही था, लेकिन इसकी अहमियत पे ज़ोर देते हुए कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है उसका माल कम नहीं होता बल्कि सदका करने की वजह से उसका माल ज़्यादा होता है। दूसरी बात आपने फरमाया मैं कसम खाता हूँ जो आजिज़ी इख्तियार करे अल्लाह उसे इज़्ज़तों से नवाजते हैं, उसकी इज़्ज़त को बुलंद कर देते हैं, उसको बड़े मर्तबे अता करते हैं। जो शख्स आजिज़ी इख्तियार करता है वो किसी कमज़ोरी का शिकार नहीं होता, वो ये ना समझे कि वो लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़तों में और ज़्यादा इजाफा करते हैं उसकी आजिज़ी इख्तियार करने की वजह से। तीसरी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात जिस पे कसम खाई, आपने फरमाया जो कशकोले गदाई लोगों के सामने करता है अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता बल्कि अपनी हाजात की उम्मीद दूसरे लोगों से लगाता है, तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं अल्लाह की कसम इसके लिए फ़कीरी के और दरवाज़े अल्लाह खोल देता है। हमें अपनी हर हाजत अल्लाह ताला के सामने रखनी चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आपकी ये जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उसके लिए भी अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए इंसानों से उम्मीद ना लगाएं,
और ना ही उनके सामने अपना हाथ फैलाएं कि मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दो। जो शख्स ऐसा करता है कि अपना कशकोले गदाई लोगों के सामने करता है तो और अपनी ज़रूरियात का रुख भी लोगों की तरफ करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए फ़कीरी के दरवाजे खोल देते हैं। एक बात याद रखने वाली है कि जिस किसी के जहन में ये बात है कि सदका करने से माल कम होगा, अल्लाह के नबी ने तो कसम उठा के कहा है कि उसका माल कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा ही होगा। हदीस कुदसी है, अनफिक उनफक़ु अलैहि। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे तुम खर्च करो मेरे लिए, मैं खर्च करूँगा तुम्हारे लिए। अब हमारे पास तो मखसूस सी कोई चीज़ होती है, किसी के पास कितना भी हो वो खर्च करे तो उसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला के ख़जाने ऐसे हैं कि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। जब हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम पे खर्च करूँगा, यानी कि हमें अल्लाह ताला माल बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा देंगे। कुरान पाक में इरशाद है, मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। कौन है हम में से जो अल्लाह ताला को कर्ज देता है और अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा करके उसको वापस लौटाते हैं। अल्लाह ताला तो को हमारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला हमारी नीयतें देखते हैं, हमारा तक़वा देखते हैं कि हमारी नीयत में कितना की इखलास है। हम अपने अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह ताला हमें बढ़ा चढ़ा के 700 गुना तक अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के उसको ज़्यादा करके हमें वापस लौटाते हैं। और ये बात जहन में कभी भी नहीं लेकर आनी चाहिए कि मेरे पास इतने से हैं, इतने उसमें से मैं सदका कर दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, बल्कि जिसको जो चाहिए वो देना शुरू कर दे। जो चीज़ आप देंगे वो आपके साथ मुनाफे के साथ वापस आएगी। अल्लाह की राह, आपको 10 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास 1 रुपये है तो उसको अल्लाह की राह में दे दें। आपका यकीन होना चाहिए, आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए कि मैं 1 दूंगा तो मेरे पास 10 वापस आएंगे। हमने अपनी इस्ताअत के मुताबिक खर्च करना है कि जितना हमारे पास होगा हमने उतना अल्लाह की राह में खर्च करना है, और अल्लाह ताला ने हमें अपनी शान के मुताबिक वापस करना है। जितनी अल्लाह ताला की शान है, जैसी उसकी शान है वो उसके मुताबिक हमें नवाजेंगे, और हमारे पास जितना होगा हमने अपनी ताकत के मुताबिक इस्ताअत के मुताबिक खर्च करना है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ए बिलाल खर्च करते जाओ, अल्लाह के ख़जानों में कभी भी कमी नहीं पाओगे। हदीस कुदसी है, अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जिन और इंसान एक मैदान में खड़े हो जाएं और हर एक अपनी ख्वाहिश अल्लाह के सामने रखे तो अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशों को पूरा फरमाते हैं। अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हज़रत आदम पहले इंसान थे और आखिरी इंसान तक जितने भी जिन हैं, जितने भी इंसान हैं क़यामत तक आने वाले, वो सारे एक ही जगह खड़े हो जाएं और एक ही टाइम में अल्लाह ताला से अपनी सारी ख्वाहिशात का दुआ करें। सारी ख्वाहिशात जितनी भी उनके दिल में है वो अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला बेहक वक़्त सबको सारा कुछ अता कर सकते हैं। तो अल्लाह के ख़जानों में जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सबको अगर दे दूँ, उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दूँ तो मेरे ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितना तुम समंदर में सुई को डुबो और फिर उसको बाहर निकालो, तो जितना पानी सुई के साथ आएगा ना बाहर, उतनी भी मेरे ख़जानों में कमी नहीं आएगी। पूरी कायनात को हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान हैं और जितने भी जिन हैं सारे जमा हो जाएं, सारे अपनी सारी ख्वाहिशात अल्लाह से पूरी करने के लिए कहें तो अल्लाह पूरी कर दें, तो इतनी भी अल्लाह ताला के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि 2 फरिश्ते हर रोज़ अल्लाह की तरफ से नाजिल होते हैं, जिसमें से एक दुआ करता है कि ए अल्लाह, जो तेरी राह में माल खर्च करता है इसके माल में बरकत अता फरमा। दुआ करने वाला नूरानी फरिश्ता है जिसकी दुआ रद्द नहीं होगी। अगर हम किसी से दुआ करने के लिए कहें या हम खुद करें, हमें मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं होता कि ये दुआ कबूल हुई है या नहीं। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये दुआ कबूल हो गई है, लेकिन जिसके लिए फरिश्ता दुआ करे उसमें किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। वो दुआ हर सूरत में कबूल होगी, क्योंकि फरिश्ते उस वक़्त तक दुआ करते ही नहीं हैं जब तक उनको अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मिलता, और अल्लाह ताला उस वक़्त तक दुआ करने के लिए हुक्म देते ही नहीं है जब तक अल्लाह ताला बंदे से राज़ी नहीं हो जाते।
जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राज़ी होता है, खुश होता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके लिए दुआ करो। फरिश्ते दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। तो ये दुआ फरिश्ते किसके लिए कर रहे हैं? जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है। 2 फरिश्ते अल्लाह ताला नाजिल करते हैं ना रोज़, उनमें से एक फरिश्ता दुआ करता है कि अल्लाह जो तेरी राह में माल खर्च करता है इसके माल में बरकत अता फरमा। हम थोड़ा सा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करेंगे और अल्लाह ताला हमें अपनी शान के मुताबिक अता करेंगे, वापस देंगे दुगना, उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा के। और दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह जो बुखल करता है और तेरी राह में खर्च नहीं करता, इसके माल को तलफ कर दे, इसके माल को बर्बाद कर दे। दुआ करने वाला कौन है? फरिश्ता। और किसके लिए दुआ की जा रही है? बखील इंसान के लिए, जो अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करता, जो बुखल करता है, तो उसके लिए भी फरिश्ता दुआ करता है कि या अल्लाह इसका माल बर्बाद कर दे, इसका माल तलफ कर दे। तो ये ज़्यादा ठीक नहीं है कि हम अपने माल में से जो हमें अल्लाह ताला ने दिया उसमें थोड़ा थोड़ा अल्लाह की राह में खर्च करते रहें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। और जो नहीं करता उसके लिए भी फरिश्ता दुआ करता है, जो करता है उसके लिए भी। और फरिश्ते की दुआ रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह ताला जिस बंदे के लिए हुक्म देते हैं वो फरिश्ते उसी के लिए दुआ करते हैं ना। तो फरिश्ते दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करेंगे। जो माल खर्च करता है उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह इसके माल को बढ़ा दे। और जो नहीं करता खर्च माल अल्लाह की राह में, उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसका माल बर्बाद कर दे, या अल्लाह इसका माल तलफ कर दे। ये है माल का सदका कि हमें अल्लाह ताला ने जो रिज़्क दिया है, जो माल दिया है, हम उसमें से अल्लाह की राह में कुछ खर्च करें। लेकिन अगर किसी शख्स के पास माल नहीं है तो वो क्या करे? इस्लाम एक मुकम्मल दीन है ना, इसने हर पहलू पे सोचा है। अगर किसी के पास माल नहीं है तो ऐसा तो नहीं ना कि उसको अब सवाब से महरूम कर देना, उसके लिए भी तो कुछ अल्लाह ताला ने सोचा ही हुआ है ना कि अब इसके पास माल नहीं है तो क्या वो सदका खैरात करने की सादत से महरूम रहेगा? जो अल्लाह ताला ने इतना अजर उसके लिए रखा है कि उसको कब्र में भी बचाएगा और क़यामत के दिन भी वो पहाड़ों की सूरत में थोड़ा थोड़ा किया हुआ आएगा। और अगर किसी के पास थोड़ा भी नहीं, उसने किया ही नहीं, तो क्या वो ऐसे ही रह जाएगा, वो इस बात से महरूम रहेगा? नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है। मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ को सदका कहा। हम तो दिन में सारा दिन सदका ही दे सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा करके हम तो दिन में बहुत ज़्यादा सदका अदा कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है। नेकी का हुक्म करना सदका है। किसी को नेक काम करने के लिए कह देना तुम नमाज पढ़ लो, तुम उठ के कुरान पाक पढ़ लो, तुम झूठ ना बोलो, तुम ये गलत काम है इसकी तरफ ना जाओ, किसी को गलत काम से मना कर देना ये भी सदका है। नेकी का हुक्म देना भी सदका है। बीवी के हुकूक पूरे करना भी सदका है। इससे हमारे घरों का माहौल भी अच्छा हो सकता है और सदका भी। दूसरी रिवायत में है अस्तगफिरुल्लाह कहना भी सदका है। रास्ते से पत्थर, हड्डी और कांटे उठाकर रास्ता साफ करना भी सदका है। रास्ते में अगर कहीं आपको पत्थर कोई नज़र आ रहा है, कोई हड्डी नज़र आ रही है, जिससे किसी को कोई तकलीफ पहुंच सकती है, कोई गिर के उसके ऊपर चोट लगवा सकता है, या कांटा है किसी के पाँव में चुभ सकता है, तो इस नीयत से कि मैं रास्ता साफ कर दूँ ताकि किसी को तकलीफ ना पहुँचो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी सदका है। अंधे को रास्ता दिखाना भी सदका है। किसी को नज़र नहीं आ रहा, आंखों का उसका मसला है, तो उसको सही रास्ते पे चला दें, जिधर वो जाना चाहता है उधर छोड़ आएँ या उसकी रहनुमाई कर दें, ये भी सदका है। गूंगे और बहरे को इसकी ज़रूरत समझाना ये भी सदका है। ना वाकफ़ की रहनुमाई करना, किसी को किसी चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है उसको बता दें कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ये भी सदका है। जो शख्स मदद के लिए पुकारे उसकी तरफ दौड़ कर जाना, अगर कोई बुला रहा है आपको, उसको आपकी ज़रूरत है, वो भाग के उसकी तरफ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी सदका है। तीसरी रिवायत में है जिसकी नज़र कमज़ोर है उसकी रहनुमाई करना ये भी सदका है। अच्छी बात करना ये भी सदका है। किसी भाई की मदद करना ये भी सदका है। किसी को पानी पिलाना ये भी सदका है। पानी पिलाना, ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर हम इनको करें तो हम तो सारे दिन में बहुत ज़्यादा सदका दे सकते हैं। और हमारा इखलाक भी इससे अच्छा ही होगा ना कि कितना ये इखलाक वाला है, कितना इसका अच्छा इखलाक है कि
किसी की मदद भी कर रहा है, रास्ते से चीज़ें भी हटा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह भी कहना, सदके पे सदका भी किए जा रहे हैं और हमारा इखलाक भी बड़ा अच्छा है। इस तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाना सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीवी को खिलाते हो वो भी सदका है, जो अपने बच्चों पर खर्च करते हो वो भी सदका है, जो अपने मुलाजमों पर खादमों पर खर्च करते हो वो भी सदका है, और जो अपनी जान पर खर्च करते हो, अपने लिए खर्च करते हो, अपनी जान पर इसलिए खर्च करते हो, इस नज़रिए से खर्च करते हो कि मेरे जिस्म में ताकत हो, मैं अल्लाह ताला की इबादत अच्छे तरीके से करूं और मैं खैर ख्वाही के मैं लोगों के लिए खैर ख्वाही का सबब बनूं, तो ये खाना पीना भी सदका है। खुद जो खाना पीना है नीयत उसमें अपनी अच्छी रखना कि मेरे जिस्म में ताकत आए तो मैं अल्लाह ताला की इबादत अच्छे तरीके से करूं, लोगों के काम आऊँ, खुद खाना पीना, ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका है। देखें जिसके पास माल नहीं है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो सदकात ही सदकात हैं, जितने मर्जी वो सदके दे। किसी मुसलमान को मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है, किसी को मिलते हुए मुस्कुरा दे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी सदका है। अपने डोल से पानी निकाल कर किसी दूसरे के डोल में डाल देना ये भी सदका है। अपनी जेब में से किसी दूसरे की जेब में कुछ डाल देना ये भी सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मारूफिन सदका सदक़तुन, हर नेकी सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया 3 दिन मेहमान नवाजी करना ज़रूरी है, इसके बाद जो तुम मेहमान को खिलाते हो वो भी सदका है। अपनी ज़ात से लोगों को तकलीफ़ से बचाना ये भी सदका है, कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ये भी सदका है। 2 मुसलमानों के दरमियान सुलह करवा देना ये भी सदका है। इंसाफ की बात करना ये भी सदका है। किसी की मदद करना और उसे अपनी सवारी पर बिठाना ये भी सदका है। किसी का सामान उठाना, किसी के पास ज़्यादा सामान है उसको मुश्किल हो रही है उठाने में, आप उसका सामान उठा दें तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी सदका है। नमाज के लिए घर से निकलना और नमाज के लिए हर उठने वाले कदम पर सदका है। हम घरों में पढ़ते हैं नमाज, तो जितने कदम हम नमाज के लिए उठाएंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया हर कदम पे सदका है। रोज़ा, उम्रा और हज करना ये भी सदका है। किसी को कर्ज देना ये भी सदका है। किसी को आपने कर्ज दिया है तो उसको मोहलत देना, अगर उसके पास नहीं है तो उसको मोहलत दें, जब उसके पास हो वो तब दे दे, उसको तंग ना करें, उसको परेशान ना करें, तो ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ये भी सदका है। तुम में से कोई काश्तकारी करे या दरख्त लगाए, उसमें से कोई इंसान या जानवर खा ले तो वो भी सदका है। किसी दूसरे को सलाम कहना अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी सदका है। 36वां सदका जो सबसे अहम सदका है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सदका की तरगीब दिलाई तो सहाबा कराम में से सब ने सदका दिया। एक सहाबी के पास कोई माल नहीं था लेकिन वो सदका देना चाहते थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास माल तो नहीं है जिसका मैं सदका करूं, लेकिन मैं सदका करना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास माल नहीं है तो तुम किस चीज़ का सदका करोगे? तो उस सहाबी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत का सदका करना चाहता हूँ। कोई मुझे बुरा कहे, कोई मुझे गाली दे, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए, जो भी मुझे कह ले मैं उसे माफ़ करता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, तो ये मेरी इज़्ज़त का सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी, अल्लाह ने तुम्हारा ये सदका कबूल कर लिया है और ये तुम्हारा सदका बहुत बड़ा सदका है। हज़रत अली फरमाया करते थे कि लोग ज़कात नहीं देते। पूछने वालों ने पूछा कि ये कैसे कह सकते हैं आपके लोग ज़कात नहीं देते, लोग तो ज़कात देते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग माल की ज़कात तो देते हैं, अकल की ज़कात नहीं देते। सहाबा कराम ने कहा कि ये क्या बात, अकल की ज़कात देना ये क्या होता है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि किसी की कोई बात बुरी लगे उसे बर्दाश्त कर लेना, ये अकल की ज़कात है। अगर हम किसी की बुरी बात को बर्दाश्त कर लेते हैं तो इससे अकल तेज़ हो जाती है और अकल में बरकत होती है। सुभान अल्लाह, कैसा सदका है और इसका फ़ायदा भी कितना है कि अगर हम किसी की चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, किसी की बुरी बात को बर्दाश्त कर लेते हैं तो उससे हमारी अकल तेज़ भी हो जाती है और अकल में बरकत भी हो जाती है, हमें अकल भी ज़्यादा आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें बर्दाश्त करने की तौफीक दे और हमें अपने माल का खर्च सदका देने की भी अल्लाह ताला तौफीक दे। जितना अल्लाह ताला हमें दिया है उसमें से हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करें और हमें अपनी अकल की ज़कात देने की भी अल्लाह ताला तौफीक दे।
दूसरी चीज़ है कि सदका फ़ितर क्या है, जो हम रमज़ानुल मुबारक में जिसको फितराना कहते हैं, हम अदा करते हैं, ये है क्या चीज़। ये जो हम रोज़े रखते हैं और उसमें कोई कमी कोताही हो जाती है, और जिस तरह के रोज़े का हक़ होता है, हम अगर हक़ पूरे तरीके से अदा नहीं कर सके, रोज़ा उस तरह नहीं रखा जिस तरह रखने का हक़ था, तो अल्लाह ताला ने हमें ये इनाम दिया है कि सदका फ़ितर अदा करें, तो इससे आपके रोज़ों का कफ़ारा अदा हो जाएगा। जो कमियाँ कोताहियाँ हमसे रह गई हैं रोज़े में, सदका फ़ितर देने से वो कमी कोताहियाँ का अल्लाह ताला कफ़ारा अदा कर देते हैं। सदका फ़ितर की वजह से ही ईद को ईद उल फ़ितर कहा जाता है, कि रोज़े की जो कमियों कोताहियों का हम कफ़ारा अदा करते हैं उसको सदका फ़ितर कहा जाता है, और सदका फ़ितर की वजह से ईद उल फ़ितर कहा जाता है। इसका मकसद ये है कि इसका मकसद ये है कि ईद वाले दिन सदका फ़ितर का मकसद भी है, एक तो ये कि हमारे रोज़ों की कमियां कोताहियां जो है उनका कफ़ारा अदा हो गया, दूसरा ये कि ईद वाले दिन कोई भी भूखा ना रहे, उसको फितराना आप दें ताकि ईद वाले दिन वो किसी से भीख ना मांगे, और जो आपने उसको सदका फ़ितर दिया है वो ईद वाले दिन उससे अपना पेट भर ले, उसको भूख ना रहे उस दिन कोई भी। अब्दुल्ला बिन उमर के मुतालिक कहा जाता है कि वो 28वीं या 29वीं को सदका फ़ितर अदा करते थे, और सदका फ़ितर जो है ये ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अदा करना ज़रूरी है। अगर हमने ईद पढ़ने से पहले इसको अदा कर लिया तो वो हमारे रोज़ों की कमियों कोताहियों का कफ़ारा होगा। अगर ईद पढ़ने के बाद अदा किया तो वो फिर सिर्फ सदका होगा, वो सदका फ़ितर नहीं होगा, उसको सदका फ़ितर का अजर नहीं मिलेगा। क्यों? जो रोज़े में हमसे कमियां कोताहियां हो गई हैं उनका वो कफ़ारा नहीं होगा, उसको सदके का अजर तो मिल जाएगा ज़रूर, लेकिन वो उसके रोज़ों का कफ़ारा नहीं होगा, उसको सिर्फ सदके का भी स्वाब मिलेगा। तो ये याद रखना चाहिए कि सदका फ़ितर जो है, फितराना जो है, वो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अदा करना ज़रूरी है। सदका फ़ितर किस चीज़ का देना चाहिए? जो ग़िज़ाइयत हम खाते हैं, गंदम है, चावल है, खजूर है, जो भी ये चीज़ें हम अपनी ग़िज़ा में यूज़ करते हैं उन्हीं का होता है। उसकी हर फर्द के लिए 2.5 किलो अनाज देना होगा। 2 किलो भी कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने सदके का अजर ही इतना रखा है कि हम ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 किलो भी दे दिया जाए हर फर्द की तरफ से तो ये भी ठीक है, अगर आप अनाज दे दें ये भी ठीक है, और अगर आप उस अनाज के बराबर कीमत अदा कर दें तो ये भी ठीक है। आप किसी को पर पर्सन 2.5 किलो खजूर या 2.5 किलो चावल या 2.5 किलो गंदम, खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ये पर पर्सन के हिसाब से 2.5 किलो दे दें तो ये हमारा सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। और सदका फ़ितर जो घर का सरपरस्त होता है उसके ज़िम्मे होता है कि वो अपने पूरे फैमिली मेम्बर का सदका फ़ितर अदा करे। उस घर में जितने भी मुलाजिम होंगे, खादिम होंगे, बच्चे, बूढ़े, जो भी उस घर में मौजूद होंगे, सबका एक सदका फ़ितर सरपरस्त के ज़िम्मे है कि वो हर एक की तरफ से सदका फ़ितर अदा करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी राह में सदका खैरात करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करने की, और जो माल ना होने की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके की इतनी सारी सूरतें हमें बताई हैं, वो सारी अपनाने की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी इबादत के बाद जो भी इबादत करते हैं दुआ ज़रूर करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ मांगते ही रहना चाहिए। हम अल्लाह ताला के कुरान पाक में इरशाद है, या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़रा, ए लोगो तुम फ़कीर हो, या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, अल्लाह के, ए लोगो तुम अल्लाह के फ़कीर हो, वल्लाहुल गनियुल हमीद, और अल्लाह ताला गनी है, अल्लाह ताला बादशाह है, अल्लाह ताला देने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अद्दुआ मुफ़ल इबादा, कि जो दुआ है वो इबादत का मग़ज़ है। तो हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ से करते हैं, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक को इस तरह गुजारने की तौफीक दे जिस तरह गुजारने का हक़ है। पता नहीं अगली दफ़ा हम रमज़ान में होंगे या नहीं होंगे। अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान इसको समझते हुए हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं इल्तिजाएं करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, नमाज़ें अदा करें, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। दुआ के कुछ आदाब बताए गए हैं।
دعا کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. تو جب بھی آپ دعا کریں کوشش کیا کریں بلکہ باوضو ہو کر ہی دعا کریں. اور 2 زانوں بیٹھ کر جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں اس طرح دعا کریں. اور اپنے ہاتھوں کو بغلوں سے دور کر کے یہاں سے ایسے کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری آنکھ سے نکلنے والا آنسو بہت پسند ہے. جو ہم رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو بعد میں نکلتا ہے, پہلے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کمیوں کی, کوتاہیوں کی, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی ساری خواہشات جتنی بھی آپ کی ضرورتیں ہیں وہ صرف اللہ کے سامنے رکھیں, کیونکہ دینے والا صرف اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے اس کے لیے دعا, اللہ کے نبی نے قسم کھا کر دعا کھائی یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے امید لگاتا ہے اور اپنی ضرورتیں ان سے پوری کروانا چاہتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کا مال کیا ہو جائے. بتایا تھا آپ کو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے قسم کھا کر کہا تھا نا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں, کم نہیں کرتے. دوسرا وہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں. اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فقیری میں اضافہ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر چیز, ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں, پورے یقین اور وثوق کے ساتھ دعا کریں, اس نیت سے کہ میں دعا کروں گی میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, کوئی میری دعائیں قبول کرنے والا نہیں, کوئی مجھے عطا کرنے والا نہیں ہے. مجھے جو بھی چاہیے میں نے اللہ کے ساتھ رجوع, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ نے مجھے عطا بھی کرنا ہے. اگر ہماری فوری طور پہ دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی, دعا کرنا چھوڑ دیں. دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص کومے میں چلا گیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا. اس کی بیوی اور اس کا بچہ 14 سال تک روز ہاسپٹل میں جاتے تھے. اس کا بیٹا جا کے اس کو نہلاتا تھا, اس کی غلاظت صاف کرتا تھا. ہاسپٹل والے تنگ آ گئے, انہوں نے کہا اس کی آکسیجن وغیرہ اتار دیتے. تو اس کی بیوی نے کہا نہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرا شوہر ضرور ٹھیک ہوگا, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کے معاملے میں جلدی نہ کریں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی, اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اللہ کے گھر میں کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں. 14 سال تک کہتے ہیں انہوں نے ایک بھی ناغہ نہیں کیا کہ وہ ہاسپٹل میں نہ گئے. 2 بار آتے تھے وہ ڈیلی, ماں بیٹا. اور 14 سال کے بعد ایک دن وہ لوگ گئے ہیں تو اس کا میاں بیڈ پہ اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری بیماری دور کر دی. 14 سال کے بعد وہ کومے سے باہر آ گیا. کس وجہ سے؟ دعاؤں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں, اور اگر ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو وہ ذخیرہ کر لی جاتی ہے, اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے. دعا کی 3 صورتیں نا, یا تو فوری قبول ہو جاتی ہے, ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں, یا پھر ہم پہ آنے والی کوئی آزمائش, کوئی مصیبت ٹال جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے, یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں, اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن دیں گے. اور قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اس وقت ہم کہیں گے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, آج مجھے ساری دعاؤں کا ثمر یہی سے ملتا ہے. تو ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین اور توکل کے ساتھ دعا کریں کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللهم اذهب الباس ورب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا
युगादिरु सक़मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाही हमने खाली हाथ तेरे आगे फैला दिए हैं, हम अपने गुनाहों को तस्लीम करते हैं। या अल्लाह बहुत गुनाहगार हैं, बहुत सियाकार हैं। या इलाही तू गफ़्फ़ार है, तू बख्शने वाला है, तू रहीम है। या अल्लाह तू रहम करने वाला है। या अल्लाह हमने तेरे आगे हाथ फैला दिए हैं, तू गनी है। या अल्लाह हम फ़कीर हैं। या अल्लाह हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाही हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमने जो भूल के किए, जो जानबूझ कर किए, या अल्लाह तू जानता है। ए रहीम बादशाह या मालिकुल मुल्क, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम कहाँ जाएंगे। या अल्लाह तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है जिसे हम अपनी इल्तिजाएं करें, जिससे हम मांगे। ए बख्शने वाले मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चला। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। या अल्लाह हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी खुशनुदी नसीब फरमा। या अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी नमाजें ठीक कर दे। या अल्लाह हमें 5 वक़्त के पक्के नमाजी बना। या अल्लाह हमें झूठ से निजात अता फरमा। या अल्लाह हमें हसद से बचा। या इलाही हमें बुग़्ज़ से बचा। या अल्लाह हमें कीने से बचा। या अल्लाह हमें इस तरह की सारी बीमारियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बना। या अल्लाह हमें क़यामत के रोज़ नामा एमाल दाएं हाथ में पकड़ाना। या अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर नसीब फरमाना। या इलाही हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाना। या इलाही जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। कब्र की तारीकियों में या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या इलाही मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जिनके भी वालिदैन दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों को रोशन फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन हैं अल्लाह उनको अपने वालिदैन की खिदमत करने की, फरमा बरदारी करने की या इलाही तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह तू शिफा अता करने वाला है, तेरे कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है, तू जो चाहे कर सकता है। या अल्लाह तू कुन कहता है तो सारा कुछ हो जाता है। ए बादशाह हमारी इल्तिजाएं कबूल कर ले। या अल्लाह जितने भी बीमार हस्पतालों में, घरों में हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह सबको औलाद नगीना अता फरमा। या अल्लाह जितनी भी सूनी गोदे हैं अल्लाह उनको आबाद फरमा। या इलाही जितने भी बे औलाद हैं या इलाही अपने ख़जानों से उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। या अल्लाह जिनको बेटियां दी हैं अल्लाह अपनी रहमत से उनको बेटे भी अता फरमा। या अल्लाह जिनको बेटियां दी हैं या इलाही तो उनको बेटे भी अता फरमा। या अल्लाह जो बेटियां मांग रहे हैं या अल्लाह तो अपनी रहमत से उनको नेक बेटियां अता फरमा। या अल्लाह जिनको औलाद दी है वालिदैन की फरमा बरदार बना। या अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना। या अल्लाह हमारी औलादों को नेक और फरमा बरदार बना। या अल्लाह उनको दीन के रास्ते पे चला। या अल्लाह उनको सिरात मुस्तकीम पे चला। या इलाही जिनको औलादें दी हैं या अल्लाह उनको वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। या इलाही जितने भी बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको अच्छा रोज़गार नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी कर्ज़ेदार हैं या अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। या अल्लाह हर एक की परेशानियां दूर फरमा। या इलाही हर एक की मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह हमने तेरे आगे हाथ फैलाए हैं, अल्लाह तेरे ही दर पे आते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। या अल्लाह तू खुद कहता है मुझे खाली लौटाते हुए हया आती है। या अल्लाह हमने खाली नहीं लौटना। अल्लाह अगर तू खाली लौटा देगा तो हमें कौन अता करेगा, हम किस दर पे जाएंगे, हम किसको कहेंगे। या अल्लाह हमने उस दर पे हाथ फैलाए जिसमें कमी किसी चीज़ की नहीं है, जो हर एक को अता करता है। या अल्लाह हमें भी अता फरमा। या अल्लाह जो रिश्तों की वजह से परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा। जितने भी वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है अल्लाह उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह तू मुसब्बिबुल असबाब है। या अल्लाह गैब के खजानों से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह हर एक के घर में सुकून, इत्तेफाक, मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमें मांगना नहीं आता
मेरे अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह जितनी भी जिसकी भी नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह तू जानता है, हमें मांगना नहीं आता, हम सारा कुछ मांग भी नहीं सकते। या अल्लाह तू जानता है, दिल की भी तू जानता है। या अल्लाह जिसके दिल में जो भी है अल्लाह तू पूरा फरमा। या अल्लाह तू अता फरमा। या अल्लाह तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता, या अल्लाह तू अता फरमा दे। हम फकीरों को खाली ना लुटा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमने जो मांग लिया वो भी अता कर दे, जो नहीं मांग सके मेरे अल्लाह वो भी अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। या इलाही हमारी दुआएं कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।